ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ 2 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ 1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 올ਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਘਟਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ 1 ਲੜਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਈ ਫੋਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਚਨਚੇਤ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई है। शंकर आनंद ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शंकर, आपसे सारा मामला जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप बेसमेंट में कोचिंग सेंटर था या उसकी पार्किंग थी, और दूसरा किस तरीके से ये विद्यार्थी वहां पर फंस गए और क्या इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था जिस समय ये सारी घटना हुई है? देखिए, ये जो घटना है कल शाम में 7 बजे के बीच की है। 7 बजे के लगभग में जब पीसीआर कॉल किया गया और इस मामले की जानकारी दी गई थी, उस वक्त में उन्हें बताया गया था कि हाँ, बेसमेंट में पानी भर गया है। और बेसमेंट के बारे में ये बताया गया कि वो बेसमेंट में वहाँ पर उस कोचिंग सेंटर का एक लाइब्रेरी था जहाँ पर स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करते थे और तकरीबन 7 से 7:30 बजे तक ज्यादा वक्त वहाँ पे होता था। उसके बाद वो लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हुई, बारिश के बाद वहाँ पर जिस तरह से पानी का जो असर है उस कोचिंग सेंटर के अंदर में बेसमेंट के अंदर में बढ़ता चला गया और बाद में स्टूडेंट्स अपने आप को बचाने के लिए उस डेस्क के ऊपर में खड़े हो गए। जो लाइब्रेरी के अंदर में जो डेस्क वो बना हुआ था उसके ऊपर खड़े हो गए। लेकिन जो दबाव जो है लगातार उस पानी का दबाव जो है लगातार बढ़ता चला गया। उसके बाद बेसमेंट के अंदर पानी भर गया जिसके चलते 3 लोगों की मौत हुई। तो इस मामले में अब जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी इस मामले की पड़ताल पे जुटी हुई है कि किस तरह से उस लाइब्रेरी में वहाँ पर तमाम ये मसले हुए, घटना हुआ है। और इस मामले को लेकर अब छात्रों के बीच में भी एक काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। काफी छात्र छात्राएं जो हैं कल रात से ही सड़क पे खड़े हैं और उसके बाद जो गुस्सा है उनका लगातार बना हुआ है क्योंकि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से जो पीसीआर कॉल हुई थी, जो पहली पीसीआर कॉल हुई थी तकरीबन 7 बजे के लगभग में उन्हें बताया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पानी में फंसे हुए हैं, वाटर लॉगिंग का मसला है। और मौके की नजाकत को देखते हुए उस वक्त में दमकल विभाग की 5 गाड़ियां भेजी गई थी। ये बरसात का ही पानी था शंकर, जो आप जानकारी दे रहे हैं, बरसात का ही पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ?
लेकिन देखिए, हाँ देखिए, बरसात बहुत ज्यादा कल तो नहीं हुई है, लेकिन वहां पर कल जिस तरह से वाटर लॉगिंग का मसला वहां पे बना और पानी का स्तर अचानक उस जगह पे बढ़ गया, तो वो मसला भी अब दमकल विभाग अपने स्तर पर ठहरा रहा है कि आखिर वो इतना पानी अचानक कैसे भर सकता है बेसमेंट में। और हालांकि पहले भी दिल्ली में बहुत काफी बारिश हुई है, लेकिन कल जिस तरह से एक चर्चा हुई कि कल अचानक शाम में 7 बजे के लगभग में जिस तरह से बारिश का मतलब मुद्दा बनाया गया, लेकिन बारिश का पानी नहीं है। और जिस तरह से वाटर लॉगिंग का जो मसला वहाँ पे, और जिस तरह से पूरा बेसमेंट में पानी भरा है, तो इन तमाम मसलों पर अब विस्तार से एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अब इस मसले को लेकर यहाँ पर चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि जिस तरह से ये मसला जो है अब राजनीतिक होता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी जो है इस मामले पर हो रही है। तो आज देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर दिल्ली पुलिस किस तरह का FIR रजिस्टर करती है, किन किन लोगों के खिलाफ करती है। तो इस मामले पर आज काफी अपडेट्स जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर। तक कुल मिला के दस्या जा रहा है कि बरसात का पानी, क्योंकि साडी रिपोर्ट ये कह रही है साडे सहयोगी दी, बरसात का पानी नहीं हो सकता। हालांकि वाटर लॉगिंग की समस्या के नाल ये पानी इत्थे आया है, ये अपने आप दे विच सवाल है। पर सिविल सेवा का जिहड़ा इंस्टीट्यूट है ये दस्या जा रहा है, सेंटर दस्या जा रहा है, जिसदे विच हेठले पासे बेसमेंट दे विच लाइब्रेरी सी और अचनचेत ते पानी भर गया। कुल 18 विद्यार्थी दसे जा रहे हैं, जिन्हां दे विचों 15 नूं रेस्क्यू कर लिया गया सी NDRF के वल्लों और 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई है। बच्चे तो हमें नहीं लगते हैं कि फंसे हुए होंगे, क्योंकि हमारे डाइवर्स की टीम भी कंटिन्यूसली इसमें काम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई कैनॉट रूल आउट कि इसमें और कोई नहीं है। जैसे मैंने बताया, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वी आर गोइंग टू मेक सिंसियर एफर्ट्स, और जब तक कि हम पूरा पानी पंप आउट ना कर दें, हमारे डाइवर्स पूरा सर्टन ना हो जाएं कि उसमें कोई आदमी नहीं है, जो वहाँ फर्नीचर पड़ा हुआ है उन सबको भी हम पूरा प्रॉपरली थरोली उठा के चेक ना कर लें, देन वी विल से दैट द रेस्क्यू ऑपरेशन इज फिनिश्ड। और जो भी फाइनल टैली होगा या जो भी फाइनल टोल होगा वी विल बी एबल टू टेल यू। अभी तक के लिए 2 है, और जस्ट फ्रॉम अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग मैं ये कह सकता हूँ कि 30-35 का फिगर सही नहीं लग रहा है। बट इंस्टीट्यूट के बारे में आप ये बताएं, कितनी इसमें 2 बेसमेंट हैं इसमें? नहीं, इसमें जो ये बेसमेंट है इसको एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते हैं, और इसका फर्दर जो बाकी सारे चीज़ के, वेदर दिस बिल्डिंग वाज ऑथराइज्ड, वेदर इसका बेसमेंट वाज ऑथराइज्ड, वेदर वहाँ पे जो बाकी सिविक नॉर्म्स फॉलो होने थे या वो सब थे कि नहीं, दैट इज ऑल अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि हत्या है, जो काम डिसिल्टिंग का होना चाहिए था वो टाइम से हुआ नहीं। अगर डिसिल्टिंग का काम ठीक टाइम पे हुआ था तो दिक्कत आती नहीं। मैंने पिछले 15 दिन के अंदर कम से कम 15 वीडियो डाले होंगे अलग अलग स्थानों के। यहाँ पर विधायक साहब हमारे रहते हैं, उस सड़क पर भी पानी ओवरफ्लो करता है, डिसिल्टिंग हुई नहीं। नैना गाँव, बुद्धनगर, इसी क्षेत्र में इंजरपुरी, पांडुनगर, हर क्षेत्र के अंदर पानी बैकफ्लो मार रहा है। अब इसकी जानकारी तो विधायक साहब देंगे या दिल्ली सरकार देगी कि डिसिल्टिंग क्यों नहीं होती, और डिसिल्टिंग होती तो ये आज बैकफ्लो ना करता, ये नाले बैकफ्लो। और ये यहाँ ही नहीं हुआ, इंद्रनगर में और स्थान पे भी हुआ। शुक्र यह है कि वहाँ पर बच्चे नहीं थे बेसमेंट में। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहाँ पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। देखिए, ये लो लाइन एरिया है और यहाँ पे पूरा पानी बाहर निकलता है इस लैंड से। यहाँ पे सडनली एक पॉइंट पे ड्रेन या सीवर कुछ तो फ्लैश टूटा है, जिसके कारण पानी सडनली बेसमेंट में गया है और उससे वहाँ पे बच्चे बेसमेंट में थे, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना। 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ 9:50 ਯਾਨੀ ਕਿ 9:45 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਬ ਔਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੜਕੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸਨ ਔਰ ਅਜਿਹਾ कुछ ना कुछ वापर सकता सी। शंकर राणा ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शंकर, क्या कुछ जानकारी, बस में ऐसी चीज देखी गई और पुलिस वहां पहुंची तो कुछ नहीं मिला? देखिए, मामला जो है कल रात का है। कल रात में तकरीबन 9:45 बजे का यह मामला है। 9:53 पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर कंट्रोल रूम को एक खबर मिली कि एक बस जो है, उस बस में बॉम्ब रखा हुआ है या बॉम्ब जैसा कोई संदिग्ध सामान जो है वो रखा हुआ है। ये इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद उस बस के आसपास जो है बैरिकेड्स लगाए गए और उसके बाद इस मामले की जानकारी एनएसजी को भी दिया गया। जो एनएसजी कमांडो हैं और उसके जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो भी मौके पे पहुंची और उसके बाद मौके पे पहुंचने के बाद तत्काल प्रभाव से उसे पूरा पड़ताल किया गया, जांचा परखा गया, लेकिन मौके से कुछ भी कोई भी संदिग्ध सामान प्राप्त नहीं हुई। और जो बस है उस बस के बारे में ये बताया गया, नांगलोई से नजफगढ़ रोड जाने की वो बस थी और जिस तरह से एनएसजी के द्वारा उस मामले पर विस्तार से तफ्तीश किया गया, उसके बाद बस के अंदर, बस के बाहर और आसपास जो लोकेशंस हैं बकायदा उसको तलाशा गया। उसके बाद एनएसजी के द्वारा भी इस मामले में ग्रीन सिग्नल दिया गया कि उस बस के अंदर में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं है। उसके बाद जाकर के जो स्थानीय पुलिस की टीम है उसे भी राहत की सांस मिली। और जिस तरह से इस मामले में जब पता किया गया कि किसने पीसीआर कॉल किया था, तो इस मामले में पता चला कि दीवान सिंह नाम के जो एक शख्स हैं, जो बस का कंडक्टर है, उन्होंने पीसीआर कॉल किया था और उन्होंने बताया कि हम जब नांगलोई से आगे बढ़े थे तो तिलंगपुर कोटा में 10-12 यात्री उतरे, उसमें से एक की सीट के नीचे हमने कुछ बम जैसा सामान देखा। हमने बस रोकी और उसके बाद इस मामले पर पीसीआर कॉल करके इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुल मिला के शक जिहड़ा है जरूर होया पर पुलिस पहुंची है तो उस समय कुछ भी बरामद नहीं होया। एक बड़ा बचाव। 9:53 ये कॉल आया था कि बस में कुछ संदिग्ध वस्तु है। इसको चेक कर लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं पाया। तो सर, इसके अंदर जिसने फ़ोन किया था उससे कुछ पूछताछ किया आपने? हाँ, ये कंडक्टर ने ही फ़ोन किया था, उसने देखा था एंड उसने बहुत सूझबूझ से काम लिया और सभी को जो है इवैक्यूएट कर दिया था। तो इमीडिएटली बस खाली हो गई थी, तो कोई खतरा नहीं था। इसके बाद पुलिस टीम आ गई थी, एरिया को पहले हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया
मॉडर्न 80 मीटर्स का हमने डिस्टेंस बना लिया था दोनों साइड, और जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट कर लिया था। थोड़ी देर तकलीफ हुई लेकिन डाइवर्सन कामयाब हो गया था। इसके बाद हमारी बॉम्ब डिटेक्शन टीम आई और दिल्ली पुलिस की जो BDS टीम है जो RK पुरम में स्थित है साउथ डिस्ट्रिक्ट साइड से, वहाँ से भी आए एंड उन्होंने जो है इसको चेकिंग किया है। पूरी तरह चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि